Hello students. First law of thermodynamics हमने पढ़ा हुआ है. We know that as per first law of thermodynamics, Q is equals to delta U plus W. Students, total there are three physical quantities Q, delta U and W. इन तीनों में से जो Q है, जो हीट है, and जो W है, जो वर्क है, these two depends on the path followed. That means Q and W, इन दोनों को हम नाम दे सकते हैं बच्चों path functions. But जो डेल्टा U है बच्चों, that is जो change in internal energy है, that does not depend on the path followed. The value of delta U depends only on the initial and the final states. इसका मतलब हुआ बच्चों that ये जो डेल्टा U है ये पाथ फंक्शन नहीं है. डेल्टा U डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स. दैट इज द रीजन हम कहते हैं दैट डेल्टा U इज अ स्टेट फंक्शन. एंड बच्चों स्टेट फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट फंक्शन. Students, out of these three physical quantities that we have in our first law of thermodynamics, Q, delta U, W, क्या तीनों पाथ फंक्शंस है? नहीं. क्या ये तीनों स्टेट फंक्शंस है? नहीं. स्टूडेंट्स, इन तीनों में से दो, कौन कौन से दो? Q एंड W, दैट इज हीट एंड वर्क, ये दोनों पाथ फॉलोड पे डिपेंड करते हैं. तो इन दोनों को हम कहते हैं पाथ फंक्शंस. ऑन द अदर हैंड बच्चों जो डेल्टा U है, दैट इज जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा. डेल्टा U पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता है. दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स डेल्टा U इज अ स्टेट फंक्शन. एंड ऑब्वियसली हम स्टेट फंक्शन को और एक नाम दे सकते हैं पॉइंट फंक्शन. ठीक है बच्चों. व्हाट अबाउट Q? Q इज अ पाथ फंक्शन. व्हाट अबाउट डेल्टा U? डेल्टा U इज अ स्टेट फंक्शन. एंड व्हाट अबाउट W? W इज अ पाथ फंक्शन. स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस सेशन हमने आपको प्रूफ करके दिखाया था why work done W is a path function. In this session students हम आपको बताने जा रहे हैं why Q is a path function. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Students, to understand why heat is a path function, we are going to consider total two cases. Out of those two cases, this one is case number 1 for you. In this particular case, students, we are going to consider a thermodynamic system consisting of an ideal gas confined to a cylinder with a movable, frictionless and massless piston. The initial volume of the system is VI. Students, I for initial. So VI is initial volume of the gas. And हम चाहते हैं that the volume of the gas should become VF. F for final. So VF denotes final volume of the system. And what about VI? Initial volume of the system. In order to do this task बच्चों, गैस का एक्सपांशन करवाने के लिए
we have to supply heat using this burner. But students, हमें एक बात का ख्याल रखना है that the temperature of the gas should not increase. The temperature of the gas should remain constant. As per this particular example जो आपके सामने है, गैस का जो टेम्परेचर है वो है 300 Kelvin in initial as well as final state. Students, इनिशियल स्टेट को हम बोलेंगे स्टेट 1 एंड फाइनल स्टेट को हम बोलेंगे स्टेट 2. स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर केस द गैस इज हीटेड स्लोली in a controlled manner so that it expands but at a constant temperature. So students, by supplying heat to the gas, its volume increases from Vi to Vf, but आपने देखा temperature is maintained constant. That means students, गैस का expansion तो हुआ, but this expansion is occurring at constant temperature. That's why ये प्रोसेस को मैं नाम देने वाला हूँ स्टूडेंट्स आइसोथर्मल प्रोसेस. सो अगर आपको पूरा स्क्रिप्ट लिखना है केस 1 का, तो आप लिखिएगा बच्चों, केस 1 रेफर्स टू आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस. स्टूडेंट्स, इन दिस केस हमने क्या किया, हमने गैस को हीट प्रोवाइड किया आइसोथर्मली. दैट मीन्स द गैस इज गेनिंग हीट. दैट मीन्स द सिस्टम इज गेनिंग हीट. दैट मीन्स Q, that is the heat supplied to the system, is positive. That means students, Q is greater than 0. नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, गैस में एक्सपांशन हुआ है. दैट मीन्स द गैस डज वर्क ऑन द पिस्टन. दैट मीन्स द सिस्टम डज वर्क ऑन द पिस्टन. दैट मीन्स स्टूडेंट्स, W, that is work done by the system, is considered as a positive, that is greater than 0. सो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ हमने फर्स्ट केस में एग्जैक्टली क्या किया. वी आर टेकिंग अ सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट. दैट इज फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम Vi टू फाइनल वॉल्यूम Vf at constant temperature over here. So we found that Q is greater than 0 and even W is greater than 0. Now students, since you understood case number 1, अभी मैं आपको केस नंबर 2 पे ले जा सकता हूँ. इन केस नंबर 2 स्टूडेंट्स, हम सिस्टम को इसी तरीके से इनिशियल स्टेट Vi से होते हुए फाइनल स्टेट Vf तक ट्रांसफर करेंगे. बट माइंड यू, दैट विल बी बाय यूजिंग अ डिफरेंट पाथ. देन ओनली स्टूडेंट्स हम कंक्लूड कर पाएंगे that by following two different paths, हालांकि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है, जो हमें Q का वैल्यू मिल रहा है वो डिफरेंट है, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे ना बेटा, that by using different paths हमें Q का वैल्यू डिफरेंट मिला. So Q is a path function. So let's start with case number 2. In this case students, gas cylinder is surrounded by an insulating material, that is insulation is been done, and the gas cylinder is divided into two compartments, namely X and Y, by a thin breakable partition. बच्चों,
स्टूडेंट्स, कंपार्टमेंट एक्स का जो वॉल्यूम है वो है वी आई फॉर इनिशियल, एंड कंपार्टमेंट वाई का जो वॉल्यूम है वो है वी आई डैश, बट अगेन आई फॉर इनिशियल. ठीक है. Mind you students, the value of Vi plus Vi dash should be equals to the final volume of the system. That means the value of Vf should be equals to Vi plus Vi dash. Now students, जो आप compartment X देख पा रहे हो of the cylinder is filled with सेम अमाउंट ऑफ गैस एट द सेम टेम्परेचर जो हम लोगों ने फर्स्ट केस में किया था. याद है बच्चों? एंड कंपार्टमेंट वाई इज एम्प्टी, दैट मीन्स वहां पे कोई भी गैस के पार्टिकल्स नहीं है. दैट मीन्स कंपार्टमेंट वाई में बच्चों हमने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है. So an important point over here is, जैसा इनिशियल स्टेट हम लोगों को फर्स्ट केस में कंसिडर करना था वैसा ही इनिशियल स्टेट हम लोग सेकेंड केस में कंसिडर कर रहे हैं बच्चों. फर्स्ट केस में हमने गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना लिया था? Vi, एंड इवन इन सेकेंड केस स्टूडेंट्स हम गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना ले रहे हैं? Vi. दैट मीन्स सेम. नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, ये जो थिन ब्रेकेबल पार्टीशन है दोनों कंपार्टमेंट एक्स एंड वाई के बीच में, नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक इट सडनली. When we do that students, what happens? There is a sudden uncontrolled expansion of the volume of the gas. That means the gas occupies the volume जो पहले empty हुआ करता था. Mind you students, but over here there is no exchange of heat between the gas and its environment because हम लोगों ने सिलेंडर को इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर किया हुआ है. So students, the final volume of the gas is Vi plus Vi dash. That means the final volume of the system is Vi plus Vi dash, which is nothing but Vf students. One more very important point over here students is that the gas has not done any work during its expansion because it has not pushed any piston for its expansion. Students, this type of expansion is called as free expansion. एंड स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपांशन हमने क्रिएट किया हुआ है हम इसे कह सकते हैं सडन अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन. सो स्टूडेंट्स, फ्री एक्सपांशन का मतलब ही होता है सडन अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन. इस टाइप के एक्सपांशन का स्पेशलिटी होगा देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग. दैट मीन्स Q is numerically equals to 0 and even no work is done by the system on the surrounding or by the surrounding on the system. That means numerically work done W is also equals to 0. So students, I hope आपको ये free expansion का that is sudden uncontrolled expansion का speciality समझा. Q is equals to 0 and W is also equals to 0. A common example of this type of free expansion is sudden puncturing of an inflated balloon or a tire. Students, it has been experimentally observed that
whenever an ideal gas undergoes a free expansion, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. इसका मतलब समझे स्टूडेंट साहब. फर्स्ट केस में हमने गैस का एक्सपांशन क्रिएट किया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है. देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द फाइनल स्टेट ऑफ द गैस in case number 1 and case number 2 is also the same. इनिशियल स्टेट तो हमने पहले ही सेम कंसीडर कर लिया है, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था. एंड रिसेंटली आपको समझा दैट हमने फाइनल स्टेट भी सेम कंसीडर किया है दोनों केसेस में बच्चों. स्टूडेंट्स, इन केस नंबर 1 व्हाट वी डिड, आइसोथर्मल expansion of gas. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस हमने क्या कंसीडर किया, VI. फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस हमने क्या कंसीडर किया, VF. हमें Q का वैल्यू कैसा मिला, ग्रेटर देन 0. हमें वर्क डन W का वैल्यू कैसा मिला, ग्रेटर देन 0. Then what we did in case number 2, students? In this case, we have used free expansion. That is sudden uncontrolled expansion. हमने गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना कंसीडर किया, VI. हमने गैस का फाइनल वॉल्यूम कितना कंसीडर किया, VF. And students, during free expansion of an ideal gas, उसका टेम्परेचर चेंज होता है क्या, नहीं. That means we are doing expansion of gas from initial volume VI up to final volume VF at constant temperature. In case number 2 हमें Q का वैल्यू मिला is equals to 0. Because there is no exchange of heat between the system and its surrounding. And हमें work done W का वैल्यू कितना मिला, 0. Because the gas has not done any work during its expansion because it has not pushed any piston. So W 0 ही होगा ना students. The conclusion that we can draw from these two particular cases, case 1 and case 2, is that case number 1 में जैसा इनिशियल स्टेट है, सेम इनिशियल स्टेट केस नंबर 2 में है. जैसा फाइनल स्टेट केस नंबर 1 में है, सेम फाइनल स्टेट केस नंबर 2 में है. बट इन द टू केसेस हमने यूज किया है 2 डिफरेंट वेज ऑफ चेंजिंग द स्टेट. दैट मीन्स हमने फॉलो किया हुआ है 2 डिफरेंट पाथ्स. स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस में हमें Q मिला ग्रेटर देन 0, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू. बट इन केस नंबर 2 वी गॉट वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल्स टू 0. So students, the punchline is in case number 1 and case number 2, इन दोनों केसेस में हमने इनिशियल स्टेट सेम कंसीडर किया है, देन हमने फाइनल स्टेट सेम कंसीडर किया है, बट वी हैव फॉलोड 2 डिफरेंट पाथ्स. एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स हमें Q का 2 कंप्लीटली डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है. फर्स्ट केस में हमें Q का एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा एंड सेकेंड केस में स्टूडेंट्स हमें Q का वैल्यू मिलेगा 0. दैट मीन्स स्टूडेंट्स फॉर 2 डिफरेंट पाथ्स that are being followed, we are getting 2 different values of heat. So from the entire study, the conclusion is heat transferred to a system depends on the
path followed. That is, students, Q is a path function. स्टूडेंट्स, बाय चांस अगर Q एक स्टेट फंक्शन होता तो आपको फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस दोनों में Q का वैल्यू सेम मिलता, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नॉट एट ऑल. फर्स्ट केस आपको Q मिला ग्रेटर देन 0 एंड इन सेकेंड केस आपको Q का वैल्यू मिला इज इक्वल्स टू 0. सो इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता स्टूडेंट्स दैट Q का वैल्यू हमें डिफरेंट मिल रहा है दोनों केसेस में. दैट मीन्स जो Q है वो एक स्टेट फंक्शन एक्चुअली नहीं है. Q इज अ पाथ फंक्शन बच्चों. दैट मीन्स heat transfer to a system depends on the path which is been followed.